and some are very useful to the RTI for RTI is concerned, and some are actually they are killing the spirit of the RTI here. There are both types of orders are there from various high courts and Supreme Courts. But anyhow, now we are relying only on the judgments which are useful to us and which are beneficial to us, and we can use them. We can cite them while getting the information from the public authorities or during the arguments in the first step authorities and before the Information Commission. One of such important order that I would like to mention here is that the Karnataka High Court order number 17103 of 2009, GM or ES ka hai. It is between K. Mahesh versus the Life Insurance Corporation of India. Mr. K. Mahesh had sought certain information from the Life Insurance Corporation of India regarding about 7,000 insurance agents. Ke baare mein bhi he has sought information, and he had made several representations to the Life Insurance Corporation, raising some grievances. The Life Insurance Corporation declined to give information regarding the action taken on the complaints or grievances raised by him by way of petitions and representations. The stand taken by the LIC of India, Life Insurance Corporation, is action taken report does not come under the purview of the Right to Information Act. It is not an information as specified under Section 2 of the RTA Act. This was the stand taken by the Public Information Officer of the Life Insurance Corporation of India. Even it was confirmed in the First Step Authority. Even Central Information Commission also said that action taken report is not information and it cannot be given under the RTA Act here. Then he challenged this order before the Karnataka High Court, and Karnataka High Court given a very good order here. It's a very detailed order. That is in writ petition number 17103 of 2009. It has clearly said that as the petitioner has specifically sought the information as to what action was taken on the representation submitted by him, detailed in serial numbers 21A to 21 of the application. The High Court clearly said that the petitioner has to be furnished information regarding the actual action taken on the said representation, and if no action is taken, the same has to be brought to the notice of the petitioner. In this case, what the Central Information Commission order is, they had allowed inspection of the file regarding his representation, but the High Court clearly says that there is therefore justification in the grievance made by the petitioner in this regard. To this extent, I am inclined to hold that the Central Information Commission was not right in justifying in merely asking the respondent to permit the petitioner to peruse the records. Respondents are therefore directed to furnish the information within 60 days from the date of this action taken on the representation in all other respects here. So this order is very clear. When a representation is made or when any complaint is made, so when a grievance is raised against the authority shall furnish the information on action taken on that particular petition here. So merely they cannot, PIOs or the public authorities cannot ask to inspect the files. They should clearly say what action taken. If no action has been taken, they should clearly specify that no action has been taken on this regard here. Now we are using this order in all the public authorities wherever the complaints are being filed, even in the police stations, police department, even with the Lokaayuktha. Whenever any complaint is made to any authority, whether it is a grievance or a general complaint regarding the irregularities committed by the public authorities. So we are using this order and eliciting the information to the public authorities. This is a very important order here. And another important order in this order is High Court order is the LIC has demanded additional fee for providing the certified copies of the documents. The court has clearly said no additional fees can be charged for providing the certified copy of the information. I would just like to deviate from this. Certified copies, getting the certified, it is mandatory
under the RTA Act to provide the certified copies of the documents by the public authorities here. But some of the public authorities were not giving the certified copies here. The Kerala High Court has clearly said in their order, in order number, they have said that it is the right of the citizens to get the certified copies. Whenever certified copies, invariably all documents under the RTA Act has to be provided by certifying it here. Recently, there is last week there is an order from the Madras High Court also regarding furnishing of the certified copies of the document is concerned. They have gone one step ahead. They said all pages are to be necessarily certified by the public information officer. Not only certified by giving the name of the officer who is providing the information should also be provided. And further, the Madras High Court has said that even the Aadhaar number of the person who is certifying should also be mentioned, because in future, if the information is found to be false or misleading, the petitioner will be convenient for the petitioner to take legal action against that public information officer. So this is regarding the certified copies. There are a lot of orders from the high courts here: Karnataka High Court, Madras High Court, Kerala High Court. 3 high courts orders say it has to be certified and given, and they should not demand additional fee for the information is concerned here. The next order I would like to highlight is there is an order from the Karnataka High Court, that is writ petition number 1766 of 2010, that is GM Residual HN Nagaraj versus Karnataka Information Commission. Here the petitioner had asked Section 4 information, that is the suo motu declaration, which is mandatorily required to be published under the RTA Act by all the public authorities. The petitioner did not get the information of the first appellate authority. Even commission also issued an order, but the order was never complied by the public authority here. The petitioner went to the Karnataka High Court. The stand taken by the public information officer is he has recently joined the public authority, and his predecessor has not done it. Hence, he is not obliged to publish the same under the act here. But the Karnataka High Court has clearly said that in spite of the same, the full information is not supplied second penalty. He did not even give the file objection. The High Court said it is the responsibility of the public information officer who is present working in the public authority to prepare it and publish it. And here he cannot shirk his responsibility on the public authorities here. So this order specifies that it is the responsibility of the present public information officer to prepare and publish it under the RTA Act here. And the third very important order I would like to mention here is the Supreme Court order in special leave petition number 3543 of 2020, that is Paramveer Singh Saini versus the Baljit Singh and others. It's a very important order regarding the providing the information of CCTV footages in the by the police department here. So many of the applications made to the public authorities, especially to the police department, were denied to the applicant, citing under Section 81H of the RTA Act here. So they said it will impede the process of investigation and it cannot be given. In many of the instances, the information given was CCTV was not functioning in the police station. Yeah, this is one of the main reason that was given for it. Another common is it is a third party information and it cannot be given to the others here. So most of the 99% of the cases, CCTV footages were rejected by citing one or the other reasons by the police department here. So this is a very important order. It has given a very detailed order regarding the installation and maintenance of the CCTVs in the police station here. It says that here in all the places of the police station, entrance, interrogation room, all the places, it has to be covered and it has to be maintained for a minimum period of 18 months, year one.
And another important is here, for installation and maintenance, district level overseeing committees ought to be established. State level overseeing committees ought to be established here. It is the responsibility of the department and the government to see that all police stations are equipped or installed with CCTV, and it should be made available to the individuals here. The order also clearly states that here a board should be displayed on before all the police stations that this police station is equipped, installed with CCTV footages, and the victim has the right to obtain it under the obtain the same from the police station here. This board should be displayed here. Another important order is here. Whenever a complaint is made to the State Human Rights Commission or to the National Human Rights Commission or to the special court, designated court of Human Rights Commission, whenever a complaint is made, it is the responsibility of the special court, State Human Rights Commission, and the National Human Rights Commission to issue summons to the concerned police stations and secure the CCTV footages from the police stations directly here. This order is a very important order, wherein this is especially for the human rights defenders. It's a very, very powerful tool here. It can be used here. Basing on this here, and even there is an order from the this is Aurangabad High Court bench has also given, if the information, whenever CCTV footages are sought from the police department, if the reason given, if it is denied due to the reason that CCTV was not functioning, an inquiry has to be established and action should be initiated against the officers who are responsible for maintenance of the CCTV is concerned here. So this Jabalpur, Aurangabad bench order in writ petition number 1111 of 2020 is also very important here. So citing these orders of the both High Court of Aurangabad and Supreme Court, and even the Karnataka Information Commission has also given a very detailed order on providing the CCTV footages under the OT Act is concerned here. By using these orders and here, now I easily we can obtain the information relating to the CCTV footages the police department is concerned here. So this is a very important order. I think I have circulated this said the Shivanji ko maine bheja tha. On the basis of this information, we have published a book in Kannada. We have made a book including the orders of the Supreme Court, order of the Aurangabad High Court, and the Karnataka Information Commission order here. And we have circulated through all the police stations and most of the public information officers, the police department, and even to the citizens. And we have made available this e-book of this this small book, so that the people can use it, citizen can use the information for eliciting the CCTV footages information from the police department here. So I thank you for the opportunity given to me. Sabko namaskar. सर मैं शिवानंद जी अगर आज्ञा हो तो एक इसी मैटर से रिलेटेड एक बात। हाँ बिल्कुल 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 पूछें देवन जी। धन्यवाद सर। मैं एक थोड़ा सा शेयरिंग भी कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा इजी हो। सर मेरे पर अभी कुछ दिनों पहले जो हमला हुआ था, तो हमने उस हमले के संबंध में वहां की वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए थी पुलिस थाने की और विभाग की। तो विभाग ने तो अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन पुलिस विभाग से हमने 48 घंटों में सूचना चाहिए थी वहां के कैमरे के रिकॉर्डिंग की। तो उन्होंने हमें एक जवाब दिया है। जवाब में उन्होंने सतीश कुमार गुप्ता बनाम पीआईओ दिल्ली विश्वविद्यालय की एक साइटेशन का उपयोग करते हुए उन्होंने बोला कि जीवन और स्वतंत्रता के प्रावधान से संबंधित मामलों में आश्चर्य में खतरा होना आवश्यक है। जबकि हमने वहां पे बताया था कि मुझ पर हमला हुआ है और मेरे जान को खतरा है, और इस सारी चीजों का मेरा उन्होंने पुलिस कंप्लेन भी स्वीकार किया, मेरा मेडिकल भी करवाया था, सब कुछ करवाया था। ऐसी परिस्थितियों के बाद भी मुझे 48 घंटों में सूचना नहीं दी गई, इनकार कर दिया गया सूचना देने से। तो चूंकि ये जो साइटेशन का जो उपयोग किया गया है, ये माननीय हमारे मुख्य गांधी जी का ये आदेश है, तो सर थोड़ा सा अगर हमें इसमें मार्गदर्शन दे सके।
Sir, now the Karnataka Information Commission, सर अगर संभव हो तो प्लीज अगर हिंदी में बोल दे तो, क्योंकि रिलेटेड मैटर है, थोड़ा समझ जाऊंगा। ये इसमें बहुत से अभी ये लाइफ एंड लिबर्टी में ये इंफॉर्मेशन, लाइफ एंड लिबर्टी में कौन सा इंफॉर्मेशन 48 आवर्स में देना पड़ेगा, ये क्लैरिटी नहीं है इसमें। लेकिन अब कर्नाटका इंफॉर्मेशन कमीशन उसके ऑर्डर में बहुत स्पष्ट रूप से बताया है कि इंफॉर्मेशन, दिस सीसीटीवी इंफॉर्मेशन फॉल्स अंडर लाइफ एंड लिबर्टी में आता है, इसलिए 48 आवर्स में इसे देना पड़ता है। ये भी ऑर्डर किया है हमने, तो इसका उपयोग कर रहे हैं। मैंने ये तीनों ऑर्डर का एक स्मॉल बुक, इट इज ये कन्नड़ में है, लेकिन ऑर्डर सभी इंग्लिश में है। मैं तो शिवानंद जी को मैं इसे भेजा हूं, आप उनसे ले सकते हैं उनका। आप ये जो है ये तीनों ऑर्डर का उपयोग करके आप इंफॉर्मेशन पुलिस डिपार्टमेंट से प्राप्त कर सकते हैं, मेरा ये सुझाव है। देवेंद्र जी, मतलब जी अगर गांधी सर और आत्मदीप जी सर भी अगर इसमें बता दे, क्योंकि जीवन और स्वतंत्रता के आपने मेरे निर्णय की बात की थी। अब सवाल ये है, जब मैं कमिश्नर था, कि लाइफ एंड लिबर्टी किसको कहा है। अगर किसी को राशन कार्ड नहीं मिला है या अनाज नहीं मिला है तो वो भी उसके लाइफ से संबंधित है। किसी ने कहा कि भाई मैं रास्ते पे जाता हूं, रास्ते में खड्डे हैं, मैं स्कूटर पे जाता हूं, मेरा स्कूटर गिर जाएगा तो मेरी जान खतरे में है। तो ये लाइफ और लिबर्टी, और मैं इसके फेवर में हूं कि जो निर्णय लिए जाए वो यूनिवर्सल लिए जाए हो सके वहां तक, ताकि हर केस में लाइफ एंड लिबर्टी डिफाइन नहीं है किया है कानून ने। अगर डिफाइन किया होता तो उस हिसाब से देख लेते थे। तो मुझे ये लगा कि 48 के अंदर पूरी देश में इंफॉर्मेशन देने में कितनी सक्षमता है। अगर हर केस को हम लाइफ एंड लिबर्टी बना देंगे तो ये सक्षम है ही नहीं। एवरेज दफ्तर के अंदर 1 दिन 2 दिन में तो पेपर निकलता है एक टेबल से दूसरे टेबल पे जाने के लिए। इसलिए मैं ये निर्णय पे आया, परफेक्ट सही है ये नहीं मैं नहीं जानता हूं, मगर मेरे हिसाब से ये है कि सूचना मिलने से लाइफ को या लिबर्टी को इमीडिएट कुछ डेंजर हो या इमीडिएट डेंजर कम हो। अगर समझ लो किसी को जान खतरे में है, अगर हॉस्पिटल में जाना है, उसके बारे में कुछ सूचना चाहिए और वो उसकी जान से जा सकता है, तो वो सूचना 48 आवर्स में देनी चाहिए। क्योंकि लाइफ और लिबर्टी, जैसे आपने कहा आपको अटैक हुआ, ठीक है, अब सवाल ये है कि इसके आगे कोई खतरा है, ऐसा कुछ आपने आर्ग्यू किया हो तो वो जान से मारने की धमकी मिली हुई है, तो वो मेरे हिसाब से सभी लोगों ने, अधिकारियों ने मेरे खिलाफ भी जो है जिस तरीके से थाने में साठगांठ चलते हुए जिस तरीके से फैलाव कर रहे हैं, के हिसाब से वो लाइफ एंड लिबर्टी में कवर होगा, क्योंकि आप पे अटैक हुआ जो फैक्चुअल है और आपको धमकी मिली जान से मारने की, तो ये लाइफ एंड लिबर्टी में आएगा। मगर हर चीज को, अगर लोग कहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ मेरी, तो हर चीज फिर तो लाइफ एंड लिबर्टी बन सकता है। मेरे हिसाब से आपके केस में 2 चीजें हुई, दोनों एलिमेंट्स के साथ। सिर्फ हमला हुआ होता तो मेरे हिसाब से, मैं अगर कमिश्नर होता तो मैं कहता है लाइफ एंड लिबर्टी में नहीं आए। मगर अगर जान का खतरा, जान से मारने का खतरा थ्रेट है तो वो लाइफ एंड लिबर्टी में आता है। पर जान से मारने का खतरा कुछ उससे लिंक होना चाहिए। सिर्फ ऐसे जाके कह दिया कि मेरे को जान से मारने का खतरा है और कोई पुरावा नहीं है, तो मेरे हिसाब से वो लाइफ एंड लिबर्टी में नहीं आए। अगर आपको अटैक नहीं हुआ होता और आप कहते मुझे जान से मारने की थ्रेट है, तो मैं एटलीस्ट उसको लाइफ एंड लिबर्टी में नहीं मानता। कुछ उसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकना चाहिए कि लाइफ एंड लिबर्टी की पॉसिबिलिटी है। जैसे अटैक हुआ, उस वजह से ही आपका केस बनता है मेरे हिसाब से। तो इस पर सर हमारी जो आगे की जो प्रोसीजर है अपील में, हमको क्या बात रखनी चाहिए, किस आधार पर हमको वो सूचना दे? 2 चीज कहनी चाहिए कि एटलीस्ट 30 दिन में तो देनी चाहिए। अगर लाइफ एंड लिबर्टी में ना भी ले तो उसको 30 दिन में तो देनी है।
48 आवर्स आपने क्लेम किया है, 30 दिन में तो देनी चाहिए। आप फर्स्ट अपील में जाएंगे, फर्स्ट अपील को ही 30 दिन 40 दिन लग जाएंगे, और खुदा न खास्ता आप कमीशन में जाएंगे तो मालूम नहीं कितना टाइम लग जाएगा। तो ये लाइफ एंड लिबर्टी का क्लॉज मेरे हिसाब से आपको एप्लीकेबल होना चाहिए, और ये वही देना चाहिए। बाकी आप फिर लड़ते रहे कमीशन में जाके, वो पता नहीं कब निर्णय होगा। सर जो ये 48 आवर्स में जो हम एप्लीकेशन करते हैं, तो इसकी अपील भी क्या 48 आवर्स में नहीं होनी चाहिए? कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो ऐसे लॉजिकली से ये आर्ग्यूमेंट पहले भी हुआ है कि भाई लॉजिकली क्या होना चाहिए। लॉजिकली जो कानून में ये लिखा है कि 30 दिन में पीआईओ को सूचना देनी है, 45 दिन के अंदर फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी को डिसीजन देना है, तो कमीशन को कितने साल में देना चाहिए? अगर ये दोनों को 30 दिन और 45 दिन की टाइम है, तो कमीशन कितना भी टाइम लगा ले, ये वाजिब है क्या? किंतु ये हकीकत है कमीशन की, मैं ज्यादातर कमीशन की बात करूं तो कमीशन के अंदर चिट्ठी कोई खोले, आप चिट्ठी भेजें या कुछ ईमेल भेजें, वो कोई खोलने को 2 दिन 3 दिन लग जाते हैं। तो 48 आवर्स मेरे हिसाब से बहुत रेयरली अप्लाई होगा जब कोई डेमोन्स्ट्रेटेबल थ्रेट है लाइफ को, एक चिट्ठी आई है, कुछ ऐसा लगना चाहिए कि हाँ ये थ्रेट सीरियस है और उससे मेरी जान जा सकती है या जान बच सकती है। ऐसे केस में लाइफ एंड लिबर्टी अप्लाई होगा, ऐसे मैं मानता हूं। जी, कार्यक्रम में अपन आगे बढ़ते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई है। लाइफ एंड लिबर्टी को श्री शैलेश गांधी सर, माननीय शैलेश गांधी सर ने एक्सप्लेन किया हुआ है। देवेंद्र अग्रवाल जी का प्रश्न था, तो वो आप सबके लिए भी उपयोगी होगा, ऐसी उम्मीद है। और थोड़ा सा प्रकाश डाल दें, क्योंकि बीरेश बेल्लूर सर ने थोड़ा सा इंग्लिश में अपना वो दिया था, तो हमारे जो हिंदी भाषी लोग हैं, तो हमें उम्मीद है कि आप सब समझ जाते हैं उन चीज़ों को। लेकिन थोड़ा सा इस बात को कि उन्होंने LIC के एक महत्वपूर्ण ऑर्डर का हवाला दिया था, जिसमें 17103/2009 कर्नाटक हाई कोर्ट का यह ऑर्डर था, और के महेश वर्सेस LIC का ये मामला था, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से कि जब आप कोई कंप्लेन करते हैं तो उसकी जो एक्शन टेकन रिपोर्ट होती है, वो वहाँ का जो लोक सूचना अधिकारी है उसको पब्लिश नहीं कर रहा था। जिस मामले को लेकर के वो हाई कोर्ट में गए, और हाई कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया, और उन्होंने कहा कि ये 60 दिन के भीतर आपको बताना पड़ेगा एक क्या किया है आपने, इसमें मतलब एक्शन लिया है कि नहीं लिया है। और इस तरह से ये लैंडमार्क डिसीजन रहा। और किस तरह से उन्होंने बताया कि इस निर्णय को आधार मानते हुए सभी विभागों में इस बात को लेकर के हमने जानकारियां प्राप्त करने का प्रयास किया, जिसमें CCTV फुटेज का भी उन्होंने उल्लेख किया। हालांकि उन्होंने केरल हाई कोर्ट के एक आदेश का भी हवाला दिया था इसी विषय पर, और बाद में मद्रास हाई कोर्ट का भी उन्होंने एक हवाला दिया। मद्रास हाई कोर्ट के उस ऑर्डर में इसी कर्नाटक हाई कोर्ट और केरल हाई कोर्ट के आदेश को ही एक अलग से बल मिला, इसको मजबूती प्रदान की मद्रास हाई कोर्ट ने, और कहा कि हाँ, ये आप जो जानकारी दे रहे हैं उसमें अपने आधार कार्ड नंबर के साथ आप ये जानकारी देंगे, ताकि सामने वाला व्यक्ति यदि कभी आपके ऊपर कोई कार्यवाही भी करना चाहे, यदि आपने गलत जानकारी दी है तो उसके पास ये आधार बनेगा। फिर उन्होंने नागराज बनाम कर्नाटक इंफॉर्मेशन कमीशन का भी एक सुओ मोटो ऑर्डर को मतलब जानकारी पब्लिश करने को लेकर के भी उन्होंने एक बताया बहुत महत्वपूर्ण आदेश, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से लोक सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी और कर्नाटक इंफॉर्मेशन कमीशन ने कोई इसमें जवाब नहीं दिया था, जिसको लेकर के पीड़ित नागराज हाई कोर्ट जब गए तो उन्होंने इस विषय पर यह जानकारी उन्होंने पब्लिश करने के आदेश दिए। साइनी बनाम बलजीत सिंह के मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट 3543/2020 के आदेश का हवाला उन्होंने दिया, जिसमें उन्होंने बृहद में बताया कि कैसे CCTV फुटेज की जानकारी पुलिस को विधिवत साझा करनी चाहिए, और ये जानकारी देने से वो मना नहीं कर सकती है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि ये 48 आवर्स के दायरे में भी आती है। इस आदेश में उसका हवाला है। उन्होंने पुलिस से संबंधित एक इंग्लिश में एक फाइल भेजी थी, जिसको मैंने PDF फाइल आप लोगों को ग्रुप में शेयर की थी, यदि आप लोगों को याद होगा। यदि नहीं है तो कृपया मुझे मैसेज करेंगे, मैं उसे आपको दोबारा भेज दूंगा। और इसी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का यह भी निर्देश है कि आपने CCTV फुटेज मात्र दिखावे के लिए नहीं लगाना है,
बल्कि सीसीटीवी आपको हर जगह, हर कमरे में लगाना है, हर कार्यालय के हर एक भाग में लगाना है, एंट्री में लगाना है, एग्जिट में लगाना है, तमाम लगाना है। और सीसीटीवी फुटेज की जानकारी कोई भी व्यक्ति आरटीआई से प्राप्त कर पाएगा, ये बात भी एक उल्लेख करके आपको नोटिस बोर्ड में लगानी है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को लेकर के भी हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि वो इसको सिक्योर कराएगा कि यदि ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास ऐसी कोई भी कंप्लेन जाती है जिसमें सीसीटीवी फुटेज के संबंधित जब बात आती है कि इसको सिक्योर कराना है, तो तत्काल बिल्कुल ऑर्डर दे करके ये जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इनको संबंधित पुलिस विभाग को बोलना पड़ेगा कि आप ये सीसीटीवी फुटेज आप प्रिजर्व करिए और ये नष्ट नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है, कृपया आप लोग इसको अवश्य नोट कर लें। औरंगाबाद का भी एक आदेश उन्होंने हवाला दिया है 1111 यानी 4 टाइम्स ऑन ऑब्लिक 2020 इसी परिप्रेक्ष्य में। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेश वेल्लूर सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को यहाँ पे प्रकाश डाला है। उम्मीद है कि हमारे जो साथी हैं इसको काफी हद तक समझे होंगे और अपन इसको आगे भी चर्चा करेंगे। आपने जो फाइल शेयर की थी उसको भी अपन एक बार पुनः शेयर करेंगे जिस प्रकार से आपने उसका रेफरेंस दिया है। तो हमें लगता है कि हम कार्यक्रम में हमारे बीच में राहुल सिंह सर नहीं जुड़ पाए हैं। उसका कारण ये है कि उनके बीच में एक काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, कोई मिश्रा जी, जिनका डेथ हो गया है। और वो बता रहे थे कि उनके घर में उनका थोड़ा सा कुछ बहुत पारिवारिक लगाव था, जिसकी वजह से वो उस कार्यक्रम में लगभग डेली उनकी जो रिचुअल्स वगैरह है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे थोड़ा सा एक बात आ जाती है। तो पिछले भी कार्यक्रम में भी वो नहीं आए थे, तो अपने उनके फ्रेंड्स के उसमें हैं, तो क्षमा चाहेंगे कि आज भी हमारे वो कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए हैं। तो कोई बात नहीं, हमारे बीच में महत्वपूर्ण लोग हैं और हमारे बीच में माननीय श्री शैलेश गांधी सर हैं, वेल्लूर सर हैं, आग्नेदीप सर हैं, तो आपके सभी प्रश्नों का जवाब देंगे। और हमारे जो साथी हैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है, तो हम एक एक करके आप लोगों से प्रश्न लेंगे और आप अपनी अपनी बातें रखिए और हमारे माननीय गणों से आप अपनी बातें, अपने प्रश्न आप पूछ सकते हैं। शिवानंद जी एक बात जोड़ना चाहेंगे? जी जी आनंद जी। ये जो देवेंद्र जी अग्रवाल वाला मामला है, इसमें एक बहुत बड़ा सवाल उठता है 48 घंटे में जानकारी देने के संबंध में। इनको जो 48 घंटे में जानकारी देने के आरटीआई के संबंध में जो लोक सूचना अधिकारी ने जवाब दिया, उसमें जहाँ तक हम समझ पाए हैं या याद ध्यान है, लोक सूचना अधिकारी ने ये लिखा है कि 48 घंटे में जानकारी तभी दी जा सकती है जब आवेदक ये सिद्ध करे कि वाकई उसके जीवन या स्वतंत्रता को खतरा है। अभी अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हर व्यक्ति कैसे सिद्ध करेगा? मान लीजिए देवेंद्र अग्रवाल जी या इनके ऐसे किसी और व्यक्ति को किसी ने मौखिक धमकी दी बिना फोन के प्रत्यक्ष में, तो उस मौखिक धमकी को जो केवल कही गई और सुनी गई है, कैसे व्यक्ति सिद्ध करेगा कि मुझे ये धमकी दी गई? अभी माननीय शैलेश गांधी जी ने कहा कि सड़क पे गड्ढा है और उसमें गिर के और कोई व्यक्ति मर सकता है या घायल हो सकता है और वो उसको जीवन से जुड़ी मामला बताते हुए 48 घंटे में उस गड्ढे को से संबंधित जानकारी मांगता है, तो वो गड्ढा तो बता देगा, लेकिन ये कैसे सिद्ध करेगा कि इससे वाकई में घायल हो सकता हूँ या मर सकता हूँ? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। माननीय शैलेश जी इस पे मार्गदर्शन दे सकते हैं? जो मेरे हिसाब से जानकारी मिलने से जान का खतरा कम हो सकता है या लिबर्टी का खतरा कम हो सकता है या लिबर्टी मिल सकती है, ऐसा कोई पुरावा होना चाहिए। अदरवाइज फिर प्योरली आर्बिट्ररी हो जाता है। जैसे आपने कहा किसी ने मौखिक धमकी दी, अभी सूचना क्या मिलेगी कि जिससे उसकी जान बच सकती है? मौखिक धमकी तो रही वहीं पे। अगर कोई रिकॉर्ड पे क्या होगा जो उनकी जान बचा सकता है, जो मिलने से मेरी जान बच सकती है? जैसे मैंने, जहां तक मुझे याद है, एक ही केस में 48 आवर्स का अलाउ किया था और उसमें 50,000 का दंड भी दिया था, और वो केस डिस्क्राइब करता हूं। उसी वजह मुझे बहुत सोचना पड़ा कि लाइफ एंड लिबर्टी किसको कहें। एक आदमी था जिसको ईडब्ल्यूएस में हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए थी, उसको स्पाइन को कुछ तकलीफ हो गई और उससे उसकी जान को खतरा था। उसने पूछा कि भाई मुझे ये ऑपरेशन करवाना है, तो उन्होंने कहा ईडब्ल्यूएस कोटा में नहीं कराएंगे, आपको 2.25 लाख देना पड़ेगा। उसने दिल्ली गवर्नमेंट के हेल्थ डिपार्टमेंट को पूछा कि मुझे इस अस्पताल में ये मिलना चाहिए या नहीं, और उसने 48 आवर्स का क्लेम किया। हकीकत ये हुई कि 48 आवर्स के बजाय 15 दिन में जवाब दिया,
उस बीच में दूसरे दिन या तीसरे दिन लोगों ने कहा, डॉक्टर्स ने कहा कि अब तो बहुत ही सीरियस हो, तुम मर जाओगे शायद। तो कुछ दोस्तों ने मिलके 80,000 जमा किए और एक दूसरी अस्पताल में 80,000 में उसका ऑपरेशन हुआ। जान तो नहीं गई मगर उसका पैरालिटिक अटैक हो गया, इस वजह से पैरालिसिस हो गया उसको। अब ये किस्सा जब मेरे सामने आया, मैंने कहा हेल्थ अथॉरिटी को तो कुछ गियर अप होना चाहिए कि 48 आवर्स के, क्योंकि आप खुद कहिए आत्मदीप साहब, सचमुच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स 48 आवर्स में सब लोग 48 आवर्स में दे सकेंगे क्या? आप जब कमीशन में थे, एक चिट्ठी आती है, आपको पता चलता था कि 48 आवर्स का ये मामला है, और वो पता चलना चाहिए 2 घंटे 3 घंटे के अंदर, यदि उसको अमल लाना है। तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से लिमिटेड, क्योंकि कानून में नहीं कहा है कि लाइफ एंड लिबर्टी क्या है। अब आपने कहा मौखिक, सवाल ये है मेरा कि कौन सी इंफॉर्मेशन ऐसी होगी जो मिलने से वो थ्रेट कम होगी, ये देखना है, ऐसा मैं मानता हूं। सर इनके मामले में माननीय शैलेश जी, मुद्दा है कि इनसे ये कहा गया कि प्रकारांतर से ये कहा गया कि आप सिद्ध कीजिए कि आपके उनको ये खतरा है। नहीं, वो सिर्फ मेरे हिसाब से उनके केस में 2 चीजें हैं कि एक्चुअल अटैक हुआ है और काउंटर एफआईआर अटैक हुआ है, वो तो एफआईआर है उसकी, और वो कहते हैं मेरे को जान का खतरा है। एंड येट आई वुड से इट्स नॉट अ क्लियर कट केस। वो डिपेंड करेगा कि सचमुच इंफॉर्मेशन मिलने से उनकी जान का खतरा कम हो जाएगा क्या, ये कमिश्नर को नक्की करना पड़ेगा। और ये प्रोसेस जैसे है, बाय द टाइम कमीशन तय करे या तो पीआईओ को तय करना चाहिए। मेरे हिसाब से इमिनेंट जहां थ्रेट है, ऐसे लगता है कि अरे ये अभी जैसे किसी को ले गए कोई, या गवर्नमेंट या पुलिस अरेस्ट करने का वारंट निकाला और कुछ इंफॉर्मेशन है जिसकी वजह से उसको अरेस्ट नहीं होगा, तो लिबर्टी का इमिनेंट थ्रेट है। परफेक्ट इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, ये काफी मुश्किल सवाल है। बट चूंकि मैं डिसीजन दे रहा था, मैंने यूनिवर्सलाइज करने की कोशिश की। तो खाना नहीं मिलेगा तो भी आदमी को बोलेगा लाइफ एंड लिबर्टी, मेरा राशन नहीं मिलता है तो लाइफ एंड लिबर्टी है, मेरी जान जा सकती है। जब हम लाइफ एंड लिबर्टी को आर्टिकल 21 से ले रहे हैं, और जब चीजें मेरे पास पुख्ता है कि भाई मेरे ऊपर हमला हुआ, मेडिकल हुई, मेरे को धमकी मिली, ये सारी ऑन रिकॉर्ड्स है, पहली बात। दूसरी बात ये कि मैं आज 15-20 दिन से जो है उस डिपार्टमेंट की तरफ मैं जा नहीं पा रहा हूँ। तीसरी बात, जो मेरी जो चीजें मेडिकल्स के अंदर में आई है उनमें प्रूफ हुई है, वो रिकॉर्ड्स के अंदर में सबसे बड़ी बात मैंने यही उठाई है कि मेरे को पुलिस थाने का कैमरा रिकॉर्डिंग चाहिए। क्यों मेरे को चाहिए? इसलिए क्योंकि जो सामने वाले पार्टी है वो किस तरीके से मिलकर वहां पे साठगांठ बना के पुलिस के साथ मेरे ऊपर प्रकरण में उल्टा बना रहे हैं, एक वो। दूसरा ये कि थाने में जो काउंटर कंप्लेंट बनाने की कोशिश की जा रही है मेरे विरोध में, है ना, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि उस दिन हमला सिर्फ मेरे ऊपर हुआ, मैं सिर्फ थाने पहुंचा, मेरी सिर्फ एमएलसी हुई, बाकी तो उस दिन किसी की एमएलसी नहीं हुई इस थाने में। तो फिर बाकी कैसे लोगों को जो है मेरे से खतरा हो गया, मैंने उनके साथ मारापीटी कर ली, मैंने उनके साथ भद्दी आपत्तिजनक व्यवहार कर लिया। तो ये सब चीज का प्रूफ है उस वीडियो रिकॉर्डिंग से पुलिस थाने के कि उस दिन एक्चुअली पुलिस थाने में हुआ क्या, किस किस तरीके के लोगों के फोन गए वहां पे, किस किस तरीके से मिनिस्ट्रियल राजनीति हुई वहां पर, किस तरीके से वहां पे हुड़दंग हुआ, सब चीजें उस रिकॉर्ड से पुख्ता होती हैं। और जिस तरीके से मेरे लिए अभियान रचा जा रहा है कि पूरे के पूरे अधिकारी एक साथ मिलके, पूरे के पूरे जितने डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी है वो जाके कलेक्ट्रेट में जाके बैठ जा रहे हैं कि इस आदमी को अंदर कीजिए क्योंकि ये जो है आदमी हम लोगों के साथ गलत व्यवहार करता है। तो सूचना मांगने से जिसको नुकसान हो रहा है, अगर एफआईआर होने से उस अधिकारी को नुकसान हो रहा है, वो इस तरीके की हरकत करेगा। अभी धनवीर राव जी के साथ हरियाणा में हुआ, उन्होंने केस किया, उनके एफआईआर हुई, एफआईआर होने के बाद अब जो है वही अधिकारी उनके ऊपर एसटी/एससी एक्ट के तहत में अब उनके तरफ में उनके विरोध में कंप्लेन लगा दी। तो ये काउंटर कंप्लेन का जो एक पैटर्न बना हुआ है कि मतलब हम अपने मुद्दों को लेकर पीड़ित होकर हम जाते हैं और वहां पे काउंटर कंप्लेन करके पेपर वर्क बना दिया जाता है। ये सब जो चीजें होती है वो उनके वीडियो रिकॉर्डिंग में दिख रही है और ये बात सामने आना जरूरी है। इस बात के लिए हमने ये जानकारी चाहिए। मैंने वही कहा कि आपके केस में कर रहा है जीवन, आपके केस में एलिमेंट्स हैं जो लगाते हैं कि भाई ये जान को खतरा है,
मगर कोई एलिमेंट के बिना आपने सिर्फ जैसे आत्मदीप साहब ने कहा, आप कहें मान लीजिए कुछ नहीं हुआ है और आप कहें मुझे मौखिक किसी ने धमकी दी है तो मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए लाइफ एंड लिबर्टी के तहत, तो क्या होना चाहिए? सर अगर लाइफ एंड लिबर्टी आर्टिकल के अंतर्गत अगर हम बात कर रहे होते हैं, तो जब लाइफ हमारी चीजों की सारी सुविधाओं के लिए हमारे को दे रहा है कि वो हमको खाने का भी अधिकार दे रहा है, जीने का भी अधिकार दे रहा है, सुविधाओं का भी अधिकार दे रहा है, तो सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। तो अगर सारी चीज इंक्लूड हो, मुझे एक चीज बताइए देवेंद्र जी, सारी चीज इंक्लूड कर ली, चलिए ये कानून चलेगा क्या? लेकिन इसमें इंस्टेंसली जो प्रूवन है, जो चीजें प्रूवन है, जो चीजें दिख रही हैं, जो ऑन मैं वही कह रहा हूँ, वो प्रूफ के साथ होना चाहिए। मेरा एक ही कहना है कि कोई प्रूफ होना चाहिए। इसमें इससे ज्यादा और क्या प्रूफ दे सकता हूँ कि भाई मेरी कंप्लेंट लॉन्च है? देवेंद्र के पास पर्याप्त परिस्थिति जन्य साक्ष्य हैं और उनके आधार पे वो सूचना आती है 48 घंटे में देने में। लोक सूचना अधिकारी ने गलत आधार पे किया है। और आपने देवेंद्र भाई जानना चाहा है प्रथम अपील के बारे में, तो आपको, क्योंकि आपको तो लोक सूचना अधिकारी का जवाब भी नकारात्मक मिल चुका, तो तुरंत प्रथम अपील करना चाहिए और प्रथम अपीली अधिकारी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर या किसी भी तरह से सीधा संपर्क करके कहना चाहिए कि ये 48 घंटे से जुड़ा मामला है, इसलिए आपकी इसकी जितना जल्दी हो सके आप तुरंत इसकी सुनवाई करके निर्णय दें। और मुझे अकारण जो है पुलिस थाने में है, बुलाने की कोशिश लगातार की जा रही है। अकारण जो है मेरे को विभाग में बुलाने की कोशिश अकारण की जा रही है। मैं ऐसी परिस्थितियों में भी जाने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि एक चीज क्लियर है कि अभी मैं इस चीज को तो समझ गया हूँ कि वहां जाना मेरे लिए उल्टा खतरा भी हो सकता है। और मैं जब तक मेरे पास ऑन रिकॉर्ड सारी चीज, अपील तो प्रथम अपील आप डाक से भेज सकते हैं, फोन पे अपीली अधिकारी का ध्यान दिला सकते हैं कि 48 घंटे का मामला है, इसको इमीडिएट आप सुने। इसी तरह अगर 10 या 15 दिन मैक्सिमम में वो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो आपको हमारी राय में सूचना आयोग में सेकंड अपील करना चाहिए और वहां भी फोन करके या किसी भी तरह से प्रत्यक्ष रूप से ये कहा जाना चाहिए संबंधित सूचना आयोग को कि इसको इमीडिएट लें सुनवाई में। क्योंकि सूचना आयोग में क्या होता है, हमको भी अनुभव है, जो अपीलें डाक से आती है आवक जावक शाखा में पड़ी रहती, वहां एंट्री होती, फिर हमारे रीडर के पास आती सूचना आयोग के, वो रूटीन में अपना क्रम से जब आई है वो अपना रजिस्ट्रेशन करते रहेंगे, अपील को खोल के पढ़ते भी नहीं कि क्या है। और सूचना आयोग के सामने वो बारी बारी से जब टर्म आता है साल 6 महीने में पेश करते हैं, तो वहां भी ध्यान दिलाना जरूरी है। हमने अपने रीडर को निर्देशित किया हुआ था कि आप खोल के पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन से पहले, और अगर लाइफ एंड लिबर्टी वाला मामला तो इमीडिएट हमको बताएं ताकि हम उसकी तुरंत हियरिंग लगा सकें। नहीं तो वो 48 घंटे वाली भी रूटीन में जाती थी सूचना आयोग, ये भी आप ध्यान रखिए, वहां भी ध्यान दिलाना चाहिए। सर कितनी दुखद बात है कि सूचना आयोग जो कि आदेश में जैसे पहले भी आ चुका है कि जो हम लोग आरटीआई में जो काम करने वाले साथी हैं, जो देश के लिए काम कर रहे हैं, बिना तनख्वाह के काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर जब हमले हो या अभद्र व्यवहार हो तो हमारे को तो राहत पहले मिलनी चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में भी जो है आयोग जो है सूचना आयुक्त है ये जो है संज्ञान नहीं ले रहे मामलों को, जबकि खुद हमारे यहाँ के छत्तीसगढ़ के सीआईसी एसआईसी सबको जो है मालूम है कि भाई मेरे ऊपर हमला हुआ है। वो दुख तो जता सकते हैं लेकिन उनके पास इतना वो नहीं है कि एक लेटर जारी करके इस मामले पर हस्तक्षेप कर। देवेंद्र भाई, केंद्रीय सूचना आयोग का तो एक फैसला है जिसमें उसने आरटीआई आवेदक से लोक सूचना अधिकारी कार्यालय में किसी अन्य कर्मचारी ने दुर्व्यवहार किया था, उस पे भी हर्जाना सूचना आयोग ने उसको दिलवाया है पीड़ित व्यक्ति। और मध्य प्रदेश में राहुल सिंह जी का उदाहरण है, आपकी तरह किसी के साथ कोई प्रताड़ना की कार्रवाई थी, उसमें उन्होंने पुलिस को एक्शन लेने का निर्देश दिया। ऐसा भी कई जगह हुआ भी। देखिए और सारी एक और बात मैं प्रसंगवश जोड़ना चाहूंगा कि हम धारा 4 की खूब बात करते हैं बाकी विभागों के लिए, लेकिन ये सूचना आयोग भी लोक प्राधिकारी हैं, केंद्रीय सूचना आयोग भी, राज्य सूचना आयोग भी, इनको भी धारा 4 का ये पालन करने के लिए बाध्य है अपनी सारी जानकारियां सार्वजनिक करने का, जिसमें बहुत सारे ऐसे बिंदु है धारा 4 के जो 17 बिंदु हैं जिनको स्वतः सार्वजनिक किया जाना चाहिए, जो आम लोगों के काम के हैं, उनकी बहुत मदद हो सकती है, उनको सूचना आयोग में आरटीई लगाने से बचना पड़ सकता है। इसलिए सूचना आयोगों में भी इस तरह की आरटीई लगाई जानी चाहिए कि धारा 4 के तहत आपने के पालन में की गई कार्रवाई की प्रमाणित या सार्वजनिक की गई जानकारी की और उसको अद्यतन किया गया उसकी जानकारी मांगी जानी चाहिए सूचना आयोग। थैंक यू। आत्मदीप सर, मुझे लगता है इस मामले में इनके जो लोक सूचना अधिकारी हैं वो तो इनको क्योंकि जिस तरह से इनका मैटर ये बता रहे हैं तो पुलिस विभाग इनको 48 आवर्स में जानकारी देने से रहा,
क्योंकि पुलिस विभाग जब FIR दर्ज नहीं कर रहा है तो अब वो जानकारी कैसे देगा, वो तो बहुत ही स्पष्ट है। तो प्रथम अपील पे जाना पड़ेगा। प्रथम अपीली अधिकारी SP होता है। SP भी यदि दबाव में होगा तो वो भी जानकारी नहीं देगा, बिल्कुल आवश्यक नहीं है। और अपील के लिए तो प्रक्रिया ही होती है कि 48 आवर्स आप रुकिए और इसके बाद आप कभी भी 48 आवर्स के बाद प्रथम अपील कर दीजिए, उसके अगले दिन आप द्वितीय अपील कर दीजिए जानकारी ना दे तो ये प्रोसेस करने के बाद आप सीधे कोर्ट में मूव कर सकते हैं। सीधे आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। और हाई कोर्ट में जैसे हमारे बीच में बीरेश वेल्लूर सर थे, उन्होंने कई सारे साइटेशन उन्होंने दिए हुए हैं और उन्होंने जो CCTV फुटेज वाला जो मामला बताया था तो उन्होंने कहा है कि उसमें उनकी जो फाइल है उनका नंबर भी हमारे ग्रुप में वो जुड़े हुए हैं, तो आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके वो विशेष ऑर्डर भी आप ले सकते हैं और उसका हवाला दे करके आप अपने केस को और मजबूत तरीके से आप रख सकते हैं। और जो 48 आवर्स में जानकारी आने का सवाल है, तो जैसे हम लोगों ने RTI लगाई और 48 आवर्स में हमें जानकारियां यहाँ पे मिली हैं, चाहे वो खाद्यान्न से संबंधित रहा हो, किसी गरीब व्यक्ति के खाद्यान्न से संबंधित रहा हो, 60 ईयर्स का है, BPL हितग्राही है, या इस तरह से पानी की समस्या रही हो। तो ये सारी चीजें हैं जो भोजन, पानी, हवा, ये तो ऐसी चीजें हैं जो, या मेडिकल फैसिलिटी है, विशेष मेडिकल फैसिलिटी है, जैसे लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, इनके विषय में हम RTI 48 आवर्स के अंतर्गत तो जानकारी लगाकर ले सकते हैं। पर ये सारी चीजें वहीं पर आकर के रुकती हैं कि कौन आपका लोक सूचना अधिकारी है, उस क्षेत्र का कौन आपका SIC है, मतलब स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, ये इस पे डिपेंड करता है। तो अभी हम तो सिर्फ उसको अपन आवेदन करके और सीधे कोर्ट में जा सकते हैं, बाकी अपन क्या कर सकते हैं उनसे बताइए, अभी वो जानकारी नहीं देंगे तो यही स्थिति हमें लगता है यहाँ पे। सेकंड अपील से पहले भी कोर्ट में जा सकते हैं। हमारे सामने उदाहरण है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का कि केवल प्रथम अपील के बाद ही रीट कर दी RTI आवेदक ने और हाई कोर्ट ने उस पर भी निर्देश जारी किया प्रथम अपीली अधिकारी। जी। ऐसे हमारे जो वरिष्ठ साथी है ताराचंद जी ने हम लोग 156(3) के अंदर में केस फाइल कर रहे हैं। हमारे यहाँ 4 दिन से लगातार ताराचंद जी शायद इस कल हमने केस फाइल करने का प्लान किया हुआ। ताराचंद जी जुड़े हुए हैं। हाँ, ताराचंद जी शायद कुछ इसके बारे में अवगत भी कराएंगे, इस तरह से वो भी एडवोकेट भी हैं। तो ताराचंद जी बताएं, ये लाइफ एंड लिबर्टी वाले मामले और CCTV फुटेज वाले जो मामले हैं, मैंने आपको अनम्यूट किया है, अपना वीडियो ऑन सर। मैं विद योर ड्यू परमिशन मैं एक बहुत छोटी सी चीज इसमें जोड़ना चाहता हूँ। बहुत सारे इशू पर तो बेसिकली फ्रेमवर्क में तो आदरणीय शिवानंद जी ने, आत्मदीप सर ने बहुत विस्तार से भी और बहुत रहनुमाई कर दी है। जैसा कि देवेंद्र जी का केस है, एक बहुत एग्जाम्पल जैसा एक केस है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बाबूभाई एंड अदर्स बनाम स्टेट ऑफ गुजरात एंड अदर्स केस में ये डिसाइड कर रखा है कि न केवल फेयर एंड इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन बल्कि फेयर एंड इम्पार्शियल ट्रायल तक आदमी का फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 25। यानी गरिमामय जीवन जीने का जो अधिकार है उसमें निष्पक्ष अनुसंधान और ट्रायल भी शामिल है। तो जहां आपने किसी थाने में अपने साथ हुए किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की इत्तला दे दी है और आपने उस पर एक 48 आवर्स के क्लोज के साथ RTI मूव की है, वहां आपको आपकी एप्लीकेशन पर की गई सारी कार्रवाई अलोंग विद नोट शीट, सारे डॉक्यूमेंट मिलने का 48 आवर्स में मिलना लाजमी हो जाता है। और प्रथम अपीलीय अधिकारी के स्तर तक अगर टाइम क्लोज हो गया और आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो RTI एक्ट की सेक्शन 21 में जो संरक्षण हासिल है लोक प्राधिकारियों को, वो अम्ब्रेला उनको हासिल नहीं होता है। और इन दैट केस, जैसे अभी जस्ट अ फ्यू मिनट्स पहले आपने जैसा इंडिकेट किया कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश ने इस बारे में PIO को तलब किया और उनको डायरेक्शंस दिए, वो बिल्कुल लॉ पर स्टैंड करता है। जहां कहीं भी आपकी सद्भावना के बाहर जाकर दुर्भावना हो जाती है, वहां पर 21 के प्रोविजंस प्रोटेक्शन किसी भी PIO को हासिल नहीं होती, ना FAA को हासिल होती है। तो इन केस में आप सीधे भी कोर्ट जा सकते हैं। और दूसरी रेमेडी आप माननीय आयोग तक भी ले जा सकते हैं, क्योंकि माननीय आयोग की जो शक्तियां हैं वो आपको इंफॉर्मेशन दिलाने की हैं, साथ में उस पर शास्ति आरोपित करने की है, और अगर जरूरी समझता आयोग तो उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए रिकमेंड करने की है। लेकिन आपको सदोष जो हानिकारित हुई है उसके लिए क्रिमिनल प्रोसीडिंग के बारे में आपको सीधे कोर्ट भी मूव कर सकते हैं। और अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायोलेशन हुआ है 48 आवर्स वाले मामले में, तो अंडर आर्टिकल 32 आपको हाई कोर्ट, कंसर्न हाई कोर्ट है, उसमें भी आप ले जा सकते हैं। बहुत उसमें इमेंस पावर है।
226 में भी आता है। कोई थर्ड पार्टी अगर लेना चाहे कि नहीं साहब इनकी लाइफ एंड लिबर्टी इन्होंने ब्रीच करी है, तो उस लिहाज से भी जा सकते हैं। तो ये बिल्कुल कानून पे स्टैंड करता है, आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे देवेंद्र जी का केस है, देवेंद्र जी का केस तो एक मॉडल एग्जाम्पल है जिसमें एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। इनके पास रिसीट भी है, जो कि बहुत दुर्लभ मामलों में किसी आदमी को हासिल होती है। और उसके बाद एसपी साहिबान को इन्होंने दरखास्त दी है, उसकी भी इनके पास रिसीट हासिल है, बिल्कुल ठप्पा लगी हुई। तो इसे बिल्कुल बियॉन्ड डाउट ये प्रूव होता है कि इनकी एफआईआर को दर्ज नहीं किया गया है। देवेंद्र जी के इंटेंशनली, बिल्कुल इंटेंशनली नहीं किया गया, तो ये मेलाफाइड है सब कुछ चीजें। और इन दैट केस आपका एसएचओ भी उसमें पार्टी बना है। देवेंद्र जी के केस में मैंने एसएचओ को भी पार्टी बनाया है, क्योंकि छुट्टी के चक्कर में फाइल नहीं हो पाई और टाइम का भी उसमें क्लोज है। कल ये इस्तगासा जो भी ऑनरेबल कोर्ट है उसके सामने देवेंद्र जी पुटअप कर रहे हैं। सो उसको मैं जो भी मेरी काबिलियत है, मैं देवेंद्र जी के साथ खड़ा हूँ और आगे भी हम सब लड़ते ही रहेंगे। बड़ी रहनुमाई भी मिलेगी, आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी लोग जानते हैं इस चीज को। सो थैंक यू फॉर द सेम। जी तारा चंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सही फरमाया है और कोर्ट से ही इसका निराकरण होगा, क्योंकि विभागों की स्थितियां तो आप देख रहे हैं। पुलिस चाहे आपके राजस्थान की हो, चाहे एमपी की हो, चाहे सीजी की हो, कहीं की भी, उड़ीसा की हो, पश्चिम बंगाल की हो, दिल्ली की हो, पुलिस तो पुलिस है। अब उसके लिए भी कोर्ट ही उसका समाधान है। कोर्ट में मामला जाए और वहीं से उसका निराकरण होगा। हमारे बीच में नित्यानंद जी भी हैं, और नित्यानंद जी भी अपने आप हैं क्या? नित्यानंद जी जुड़े हुए हैं, कृपया अपने आप को अनम्यूट कर लें। और ये लाइफ एंड लिबर्टी वाले जो क्लॉज आ रहे हैं और इस तरह के मामले, चाहे वो आरटीआई से हों या आरटीआई से हटके भी हों, संविधान के उस अनुच्छेद 21 की इस तरह से बात आती हो, तो उसमें क्या आप इसको कैसे इसको आप देखते हैं? किस तरह से मामले आपके पास भी आते रहते हैं, काफी अनुभव आपके पास भी है, तो इस प्रकार के मामलों में आपका क्या कहना है? नित्यानंद जी सुन पा रहे हैं? नित्यानंद जी हमें लगता है कि मीटिंग में नहीं है जी। ठीक है, अब हम आगे सीधे चलते हैं। हमारे बीच में बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने काफी समय से हैंड रेज किए हुए, मैं उनको देख पा रहा हूं, और हमें लगता है कि उनकी भी बातें सुन लेनी चाहिए। काफी कम समय भी बचा हुआ है हमारे बीच में। तो सबसे शुरुआत हम करते हैं भारत सिंह जी से। पहला हैंड रेज आपका हमें दिख रहा है। भारत सिंह जी, अपने आप को आप अनम्यूट करें। हाँ, अनम्यूट कर लें आप अपने आप को और आप अपनी बात रखें। अनम्यूट कर लें आप अपने आप को। हाँ जी, बताइए। नमस्कार सर, सभी को नमस्कार साहब। जी नमस्कार। मेरा एक अनुरोध है, मैंने